Oh, hello. Good evening. Good evening. Good evening. Hello, students. Uh, Today we are continuing with the same chapter, solid state. I was doing percentage packing. I've completed 2 percentage packing of simple cubic and body centered cubic structure. Today I'll be doing calculating percentage packing of face centered cubic structure. After that, we'll be doing numericals. And then if time permits, we'll be doing defects in the crystals. Okay. In FCC, there are one particle at the corner of the cube, and there are one particle on the center of each face. On the center of each face. So here you can see in the diagram, there are 8 particles at the corner of the cube. And there are 6 particles on the surface of each face. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. So there appears to be total 14 particles, but there are no 14 particles. There are only 4 particles in a unit cell of FCC. Because the particle which are at a corner, the particle which are at the corner is just 1 by 8. So this is 1 by 8. 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 This is 1 by 8, and one behind this, there's a 1 by 8. And the particle which on the face is there 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, and one which is behind that. This is also 1 by 8. Okay. So there appears to be total 14 particles, but actually there are only 4 particles in a unit cell of a face-centered cubic structure. Face-centered cubic structure. We'll calculate what is the percentage packing in face-centered cubic structure. What is the percentage packing in face-centered cubic structure? Hmm. 74. But you will have to calculate it. Okay. We'll have to Yes, show the sir. calculation. Let
A be the edge length. This we are doing percentage packing of face centered cubic structure. We know that answer is 74, but हमको calculate करके बताना है. Let A be the edge length of the cube. That means this is A, this is A, even this is A. Okay. Therefore, volume of cube is A cube. Volume of cube is what? A cube. Let R be radius of the particle. Okay. Now, what is the relation between A and R? What is the relation between A and R? What is the relation between A and R? Can you get some relation? क्या A is equal to 2R ऐसा कुछ दिखता है? नहीं.
students? Okay. Students, I'm starting again. Hello. Hello. Yes, sir. There was no network in my colony. हेलो हेलो इस्लाम। अरे हिबा उस दिन तू 1 लाख रुपए ट्रेन से लेके आई। हाँ, वहां से नहीं, क्यों ऐसा? अच्छा, अकबर सर के पास नहीं गई तुमने? अच्छा, नहीं नहीं, मुझे बोलना था ना ऐसा, हमने तुम्हें एक दिन पहले पैसा निकाल के रखे तूने। नहीं नहीं नहीं, वहीं पर रख। मैं बोला थर्सडे के दिन मैं आ रहा हूँ ना, थर्सडे के दिन निकालना था पैसा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैंने एक्चुअली बोल इतने इतना रिस्क नहीं लेना कभी, इतना पैसा ले जाने का। हाँ, दूसरी बात देखो, उधर से देते होगे ठीक है, नहीं तो मैं अकबर सर। हाँ, चल, नहीं नहीं, मैं बोल दूंगा कभी भी आएगी तो उसको देते जाना, कभी भी है, जब जरूरत पड़ी तो। हाँ, चल, चल। Hello, yes. Triangle ABC. In triangle ABC, if you apply Pythagoras, what you'll get? क्या मिलेगा आपको पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो? बोलो। A square equals to B square. BC square. ए स्क्वायर, क्या बात कर रहे हो? पाइथागोरस भूल गया तुम। ए बी स्क्वायर, AB square square plus BC square. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। AB square is equal to A square plus A square because AC and BC is equal to A. But what is AC? You see AC? Yes, AC sir. क्या है? ये देखो, मैं डायग्राम में देखो, Right. this part is R, this part is 2R, and this part is R. Yes, no? ऊपर वाला R है, बीच का 2R है, and नीचे R है. That means AC is equal to R plus 2R plus R is equal to 4R. So you substitute here 4R the whole square is equal to 2A square. Therefore 16R square is equal to 2A square. Okay. Therefore R square is equal to 2 upon A square upon 16. Yes. Yes, sir. तो कितना आएगा? R is equal to 1/8 A square. A square upon 8. Okay, and R is equal to what?
sorry, r square. R is equal to a upon root 8, and that is equal to a upon 2 root 2. So r is equal to a upon 2 root 2. Okay. So now we got a relation between r. उधर बट ए भी आएगा ना, हाँ? क्या? बट ए भी आएगा ना सर? क्या? I am not getting your voice. सर उधर आपने एसी लिखा है, ए भी आएगा ना? AC है ना बेटा? AB, sorry. AB. This is AB. Yes. हाँ सर. Okay. Now, R is equal to A upon 2 root 2. Now, what is volume of sphere? 4/3 pi r cube. Volume of sphere is equal to 4 upon, root 3 upon, or 4 upon 3 pi r cube. Volume of particle, volume of a particle is equal to volume of sphere. So what is volume of particle? Volume of sphere 4 upon 3 pi r cube. What is r ka value? What is r ka value? A upon 2 root 2. root 2, the whole cube. तो क्या होगा? 4 upon 3 into pi into a cube. What will be a 2 ka cube? 8 8. into 2 into 2. So this will be 4 ones are 4 twos are. So that will be pi a cube upon 3 twos are 6, 12 root 2. 12 root 2. Pi a cube upon 12 root 2. In FCC, there are 4 particles in one unit cell. Therefore, volume occupied by particles in FCC unit cell is equal to 4 multiplied by pi a cube upon 12 root 2. So that will be pi a cube upon 3 root 2. Volume occupied by particle in FCC unit cell is equal to 4 into this. 4 of 1. Abhi next. This is the volume occupied by particles. Volume occupied by particles in FCC unit cell. Packing efficiency, percentage packing, is equal to volume occupied by the particle upon volume of a cube
multiply by 100. So this will be pi a cube upon 3 root 3 into volume of the cube is a cube into 100. A cube cancel. So this will be 3.14 into 100 upon 3 into root 2 into root 2 ऊपर root 2. Rationalizing the denominator. रूट 2 है, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी रूट 2 से मल्टीप्लाई किया. So this will be what? 3.14 into 100. What is the square root of 1.414? Yes. सर पाई ए क्यूब के डिनोमिनेटर में है ना 3 रूट 2. क्या पाई ए क्यूब के डिनोमिनेटर में ए क्यूब है ना, तो ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा. ऐसा है ना वो पेपर. पाई ए क्यूब अपॉन 3 अपॉन 2 अपॉन ए क्यूब. तो ये ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा. तो ये मल्टीप्लाई बाय 100. सो दिस विल बी व्हाट? पाई अपॉन 3 रूट 2 into 100. (1.414) upon 3 into 2. So this will be 314 into 1.414 upon 6, and that will come to 74%. So percentage of volume occupied is equal to 74. Percentage of volume empty or void is equal to 26. So this is the way of calculating the 3. ये तीनों में से एक आने का चांसेस ज्यादा रहता है. You may be asked, find out percentage packing of FCC or BCC or simple cubic. तो आपको डायग्राम के साथ देना. डायग्राम कौन सा देना आपको? ये वाला डायग्राम नहीं देना. Don't give this diagram. Give only this diagram. Okay. खाली इतना भी ये नहीं बनाओगे तो भी चलेगा. खाली इतना ही बनाओगे तो भी चलेगा. Okay. I can show that diagram what you can how you can give the diagram. You don't डरने का नहीं कभी डायग्राम से. मैं बताता हूँ कैसे. और उसके लिए मैं दूसरा इंक यूज करता हूँ पार्टिकल के लिए. एक ये पार्टिकल, एक कॉर्नर का पार्टिकल और एक बीच का पार्टिकल. ओके. और ऐसे. So this is red particle. Then take triangle A, B, C. या इधर B ले लो, यहाँ पर C ले लो. बस इतना ही शो कर. This is R, this is 2R, this is R.
डायग्राम शुड बी सिंबॉलिक, ऐसा डायग्राम को मार्क नहीं रहता, खाली कैलकुलेशन एक्सप्लेनेशन के लिए डायग्राम देना। तो कॉर्नर का पार्टिकल, बीच का एक फेस का बॉडी एंड ये कॉर्नर का पार्टिकल। सो दिस वाज द कैलकुलेशन फॉर एफसीसी। नाउ टुडे we'll do numericals on, so numericals, पहले मैं फॉर्मूले देता हूँ। सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफसीसी। number of particles, 1, 2, 3. Okay. Relation between सर 4 है ना एफसीसी में? 4, सॉरी 1 2 3 में सीधा लिख दिया पागल जैसे। One, two, four. Relation between A and R. A is equal to 2R. And what is your BCC का क्या है? BCC का क्या है? A is equal to 4 upon root 3R. 4 upon root 3R. Sorry, BCC का। A is equal to 4 upon root 3R, and यहाँ पर A is equal to 4 2 root 2R, 2 root 2R, or you can also say A is equal to root 8R. Okay, so this is the relation. Then density of unit cell is equal to mass of unit cell upon volume of unit cell. What is mass of unit cell? X into M upon NA. What is X? Number of particles per unit cell. एक यूनिट सेल में कितने M molar mass of particle, and Na is equal to Avogadro's number upon A cube. So it will be xm upon Na into A cube. Na means Avogadro's number. तो इसी के ऊपर सम्स है, और दूसरा कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है. डोंट बी स्कैरी, सम्स आर वेरी सिंपल. विल सी द सम्स, एंड थोड़े बहुत सम्स अलग टाइप के भी होंगे.
Okay. See, if you have a textbook, if you don't have, I'll just dictate question number 1. Density of iridium. Density of iridium is 22.4 gram per cm cube. Is 22.4 gram per cm cube. The unit cell of iridium is FCC. Of iridium is FCC. Calculate the radius of iridium. Number 1, radius of iridium. And number 2, radius of iridium. Calculate radius of iridium. Molar mass of iridium is 192.2 G per mole. Now you tell me what is given to you. We'll go very slowly, doesn't matter. आपको क्या क्या दिया है? Density, molar mass. एक मिनट, let's see. Density of unit cell है ना, दिया है. कितना है? 22.4. Then what you are given? You are given structure is FCC, है ना? तो इससे क्या मालूम दिया? Therefore, number of particles 4. per unit cell. हाँ, ये इससे लोग पकड़ते नहीं क्या? इज इक्वल टू 4. तो ये दिया आपको. क्या? Yes, sir. मोलर मास दिया है. मोलर मास ऑफ इरिडियम. ओके, हाउ मच इट इज? 192.2. ओके, मैंने क्या फॉर्मूला दिया तुमको? डेंसिटी इज इक्वल टू, राइट, दिस इज डेंसिटी है ऐसा. सो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला दिया? x into m upon na into a cube. Am I right? Yes, sir. X, what is x? डेंसिटी मालूम है, चलो मैंने लिख देता हूँ. कितना डेंसिटी? 22.4. और क्या है? x कितना है बेटा? बोलो. 4. देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. m 192.2. what is this? 6.022 into 10 raised to 23 into a cube. Am I right? So a cube is equal to 4 into 192.2 upon 6.022 into 10 raised to 23 multiply by 22.4 to 11.2 to 5.6. Okay, now
हम क्या निकालेंगे, लॉग, ओके, लॉग हमको a चाहिए ना, a विल बी 192.2 अपॉन 6.022 into 10 raised to 23 into 5.6 raised to 1/3 क्यूब रूट निकालने, a cube is equal to, therefore a is equal to cube root of this, तो इसका क्या आएगा, a is equal to 1/3 log of 192 minus log of 6.022 into 10 raised to 23 into plus log of 5.6, ये डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ओके। चलो बोलो लॉग का वैल्यू बोलो बच्चे लोग, 19.1922 बोलो, अरे सांगा ना, 19 का 22 में देखो, क्या वो भी मैं बताऊं, लॉग वैल्यू बोलो 19 का 22 का, सर 8 मिनट। 1 मिनट, लॉग बुक ढूंढ रहे होंगे अभी, यस सर। मैं इधर रहता ना, मैं सब कुछ रेडी रखता हूँ, ओके चलो। 19 का 22 2833 प्लस 4 2834 2834 2837 सर। 37 है, सर 2833 प्लस 4 करो ना। 9 4 के 19 का 22 है ना बेटा, 2833 प्लस 2 2 पर 4 है ना, 2 तो पर सर 4 है, 2 19 का 2 में 19 का 2 कितना है 2833, और उधर डिफरेंस में कितना है 2 है और 4 है, 4 है, तेरे इसमें कितना दिया, हर लॉग बुक में अलग अलग वैल्यू दिया रहता है, नहीं सर 4 है। हाँ 4 है ना, बोला ना, सो 283437, सर आप 2834 बोल रहे थे ना। अच्छा। अब इसका क्या, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा बताओ बच्चे, सर वहाँ पे 1/3 लिख दो सर, किधर, आप 2 लिखा है। हाँ ओके, बोलो इसका लॉग कितना आएगा बोलो, 6022 इंटू 10⁻23, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 23 रहेगा, और 60 का 22 में देखो, 60 का 22 में देखो, 7796 और 1 7797 प्लस 5.6 कैरेक्टरिस्टिक 0, 56 का 0 में देखो, 7482 7482, अभी तो a इज इक्वल टू 1/3 2.2837 माइनस, इन दोनों को ऐड करो, 7 and 2 9, 9 and 8 17,
1 carry. 8 and 4 12, 1 carry. 8 and 7 15, 1 carry 24. अभी डिफरेंस ले लो, डिफरेंस ले लो 2.2837 and 0.5279. 17 minus 9, 8. 12 minus 7, 5. 7 minus 2, 5. 12 minus 5, 7. 1 minus 24 bar 23. So this will be 2.2. Sorry. This will be bar 23.7558 divided by 3 में वापस 2 लिखा. Okay. Now you have to divide this number by 3. Can you divide 23 by 3? Tell me, can you divide 23 by 3? रिकरिंग आएगा सर. नहीं डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं, मुझे इतना बताओ. हाँ सर. हो सकता है सर. कैसा, कितना मिलेगा? 23 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7.6. नहीं, हमको कंप्लीटली डिविजिबल चाहिए. दैट मींस दिस कैरेक्टरिस्टिक शुड बी 24. तो इट इज नॉट डिविजिबल. तो अभी क्या करने का? ऐसा जब आता है तो क्या करने का? ये बार 3 and 7 8 8 8 यानी कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है? 23 बार 23 एंड मेंटिसा कितना है? 0.7558. जरा ध्यान से देखो, ये कैलकुलेशन पार्ट कभी कभी चांस में मिल गया अभी तुमको समझने के लिए. तुमको 3 से डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या करने का? तो 3 से डिवाइड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स में -1 ऐड करने का और मेंटिसा में +1 ऐड करने का. तो एक ही नंबर में कैरेक्टरिस्टिक्स में -1 ऐड किए और मेंटिसा में +1 ऐड किए, यानी हमने कुछ नहीं ऐड किए. इन कैरेक्टरिस्टिक्स वी एडेड -1 एंड इन मेंटिसा वी एडेड +1. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन गया? 24 बार 24 और मेंटिसा क्या बन गया? 1.7558. See, this part is called mentisa and this part is called as characteristic. So ये डिविजिबल नहीं था 3 से, इसलिए उनको डिविजिबल बना दिया. -23 -1 -24 and -24 is divisible by 3, 8 हो जाएगा. लेकिन हम माइनस कोई भी नंबर में चेंज नहीं कर सकते. तो हमने क्या चालाकी किया? एक तरफ -1 ऐड किया, दूसरी तरफ +1 ऐड किया, एंड हमने कुछ नहीं ऐड किया, कोई चेंज नहीं किया. -1 इन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड +1 इन मेंटिसा. तो मेंटिसा 0.7558 +1 कितना हो गया? 1.75. अब इसको 3 से डिवाइड करो. अब इसको 3 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा? बार 8. इसको 3 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा? 3 5 15, 2 कैरी. 3 8 24, 1 कैरी. 3 5 15 एंड 3 9 करो या 3 2 करो. 3 करता हूं मैं. ओके, तो ये हो गया ए. आप इसका एंटी लॉग ले लो, इसका एंटी लॉग ले लो, तो क्या मिलेगा? 58 का 5 3 में देखो, 58 का 5 3 में 5 3 3 8 4 6 and 3 3 8 4 9.
3849. 3.849 multiplied by 10 raised to minus 8 centimeter. Why centimeter? Because density is given in gram per centimeter. इसलिए इधर आंसर सेंटीमीटर। अब ये क्या आ गया, ए का वैल्यू। हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, रेडियस। सो रेडियस चाहिए। ओके, तो एफसीसी में ए और आर का रिलेशन क्या, ए इज इक्वल टू √8r। बट in FCC, A is equal to √8r. So √8r is equal to 3.849 into 10 raised to minus 8. Therefore, r is equal to what? 3.849 into minus 8 upon √8. रैशनलाइज, तो इसको ऐसा लिख सकते 38429 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 अपॉन 2√2, और इसको और आगे लिख सकते 3.849 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 अपॉन 2√2 इंटू √2 इंटू √2। तो ये क्या होगा, 3.849 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 इंटू 1.414 अपॉन 4, 2 1s 2.7 07 707। अब इधर जाएगा 2 1s 2, एक कैरी 2 9s 2 2s 2 5s। अभी r इज इक्वल टू 1.925 मल्टीप्लाई बाय 0.707 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू माइनस 8 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोगुना मल्टीप्लाई करा, दोगुना मल्टीप्लाई किया 1.925 मल्टीप्लाई बाय 1.3609। वन पॉइंट 360 into 10 raised to 8 centimeter। Okay. सर हाँ बोला। सर वहाँ पे आपने लिखा है ना -23 पॉइंट समथिंग। हाँ बोलो। हाँ सर वहाँ पे -22 पॉइंट आएगा। कैसा 22 आएगा? सर आपने माइनस बराबर देख लो सर एक बार माइनस। ये 1 है ना, 1 और ये 23 है। वन है ना, ये देखो log ऑफ 192.2 इज 2.2837। इन दोनों को ऐड किए तो ये मिला। हाँ सर। फिर सब्ट्रैक्शन करिए तो देखो 17 - 9 8, 12 - 5 7 5, 7 - 2 5, 12 - 5 7 and 1, and here this is 23 because this is 1 is positive and this is -24, तो बार 23 आएगा ना।
तो इसको -23 को माइनस किया तो ये मिल गया। यस, सो 3.849 10 to -8 मिला। डिवाइड अभी a is equal to 8√r। सर मैंने कैलकुलेटर से भी किया हाँ तो भी -22 पॉइंट ही आया। कैलकुलेटर से कैसा, कैलकुलेटर से नहीं आएगा -22। ये डिफरेंस नहीं लेने का है हमको, नीचे वाला को ऊपर वाले से माइनस करने का। हाँ सर वी आर नॉट टेकिंग डिफरेंस। डिफरेंस लेगा तो 22 आएगा, मैं बोलता हूँ ना। अच्छा आपने क्या कैलकुलेट किया, तुमने कैसा किया मालूम? 24 को ऊपर लिया और 2.28 को नीचे लिया, तो अब देखो आएगा आपको 22.2424। Yes, and this is sir. wrong, and this is wrong. Denominator minus numerator, sorry, numerator minus denominator. Yes, ऐसा करोगे लॉग में डिफरेंस नहीं लेते, you have to subtract the denominator from the numerator. सर वही किया। तो मुझे कैसा किया बताओ ना। सर कैलकुलेटर से एक बार आप मैं तुम्हारे सामने किया, इसको कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सर मैंने क्या किया 2.2837 -24 पॉइंट किया। हाँ ऐसा किया ना, लेकिन हाँ। इसमें 2 वो डिफरेंस आ गया था उनको। कैरेक्टरिस्टिक से कैरेक्टरिस्टिक से मेंटिसा से मेंटिसा, ऐसा होता है। अच्छा सर। और क्या कर रहा था अभी? 3.849 multiply by 1.414 divided by 4, 1.3606 into 10 raised to -8. Okay. So this will be 136. सर हाँ बोला सर, योर वॉइस इज सो लो। बेटा ये तेरा ही प्रॉब्लम है, इसको बाकी सबका प्रॉब्लम है। लो मेरा वॉइस लो है क्या? हेलो सर अभी क्लियर है। क्लियर है? हाँ ओके। अब इसको कैसे लिखेंगे? (13.6 into 10 raised to minus, अच्छा मीटर में कन्वर्ट करो पहले, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? अगर आंसर ऐसा लिखना है तो मैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक का आंसर लाना चाह रहा हूं, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो। into 10 raised to -2 meter. So that will be 1.36 into 10 raised to -10 meter. ये इसको इधर ले लो, 136 point into 10 raised to -12 meter. R is equal to 136, 10 raised to -12 का मतलब पिको एंड मीटर। ये आ गया आंसर। 10 raised to -12 का मतलब पी का मतलब पिको, पिको का मतलब पी। ओके, तो आंसर इज 136 पी
पीएम, पीएम मीन्स पिकोमीटर। मैं 2 से शिफ्ट किया, -10 को -12 बना दिया, तो 136 पीएम। ओके, 136 पीएम हो गया। सो आर द रेडियस ऑफ द इरिडियम इज 136 पीएम। ओके, चलो, तो ये था सम। नाउ next, aluminium crystallizes. Fifth question. Aluminium crystallizes in cubic close pack, cubic close pack structure with unit edge equal to unit edge length (353.6 pm). बहुत अच्छे सम दिया। What is the radius of the aluminium atom? Of aluminium atom. And secondly, how many unit cells are there? How many unit cells are there in 1 cm cube of aluminium? इसमें 2 क्वेश्चन दिया। What is given to you? Let's see. हाँ, एक और दिया और उसने ये नहीं दिया। बोलो, how many radius? पहले आपको पूछा व्हाट इज द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर means FCC. Means FCC. आपको एज लेंथ दिया है, कितना दिला है? 353.6 pm। और आपको पूछा क्या है? R। FCC का हमको ये तो मालूम है, इन FCC A is equal to √8R। A मालूम है तो R मिलेगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ, सिंपल से क्वेश्चन है ये। लेकिन क्या दिया है बच्चे? A को उसने PM में दिया है, हम CM में करेंगे। A को उसने PM में दिया, हम CM में करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बना देगा। क्यों? कि हमको वॉल्यूम कितना दिया है? CM क्यूब। तो ये PM को CM में कन्वर्ट करेंगे। 353.6। आंसर भी किसी में अच्छा, उसने PM में दिया, आंसर तो चलेगा। रेडियस भी PM में, तो इससे करेंगे।
A is equal to √8R, है ना? हाँ है सर। ना? 353.6 upon √8 is equal to R, and that is equal to 353.6 upon 2√2. Okay, √8 का मतलब √2 multiply by √2 upon divided by √2, so that comes to 353.6 into 1.414 upon 4. This is R. R is equal to, करो, 353 जाएगा, हाँ जाएगा जाएगा, 4 8 is 32, 3 carry, 4 8 is 32, 1 carry, 4 2s are 4 4s are 16 into 1.141. Okay, क्या आएगा आंसर? 8.4 multiply by 1.414, 124.9976, 124.997. So that is equal to 125 pm. रेडियस मिल गया. अभी क्या चाहिए हमको कि कितने यूनिट सेल रहेंगे 1 cm³ ऑफ एल्यूमिनियम में. 1 cm³ ऑफ एल्यूमिनियम में कितने यूनिट सेल रहेंगे? How many unit cell will there in 1 cm³? हाँ, number of unit cell in volume of metal is equal to V upon A³. V upon A³. Number of unit cell is equal to V upon A³. What is V? Volume. A भी मालूम है, A को भी मालूम है, तो V कितना बेटा? 1. What is A? हाँ, तो उसको अभी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा. A is 353.6. V is equal to 1 cm³. तो A को भी cm³ में करना होगा. 353.6 pm है, तो उसको अभी 353.6 into 10⁻⁻12 m. So 353.6 into 10⁻⁻10 cm. So this is it, divided by 353.6 into 10⁻⁻10. So this will be 1 upon 3.536 into 10⁻⁻8. So this will be 1 upon 3536. Then ये ऊपर जाएगा.
सर हाँ बोलो। वहाँ 10⁻10 है ना, इधर 8 लिखा है वहाँ पे आपने। तो मैंने पॉइंट को आगे लिया है ना बेटा, हाँ हाँ सर, सॉरी। ये पॉइंट को आगे लिया ना, तो 100 हो जाएगा ना, तो माइनस ही रहेगा। हाँ, ये इसका क्यूब होएगा ना, इसका क्यूब करने का है, एक क्यूब। So this will be what? 10⁻24 upon 3.536 the whole cube। तो इसको कैसे करोगे? 10⁻24 होगा, इसको 3 इंटू लॉग ऑफ 3.536 करो, राइट। इसका वैल्यू निकालो, क्यूब है ना। 10⁻24 इसका 3, व्हाट इज लॉग ऑफ 3536, और इसका एंटी लॉग ले लो। 3536 का एंटी, ये क्या आएगा? 3536 का लॉग कितना बेटा बच्चे? 3536 5478 और 6 का 7, 5485 5485, यस ना, 5485। ये दोनों जन को मल्टीप्लाई करो, दोनों जन को मल्टीप्लाई करो, 5.5485 multiplied by 3, 1.6455, 1.6455। अभी तुम्हारे पास रेसिप्रोकल होगा तो रेसिप्रोकल ले लो, लॉग बुक में रेसिप्रोकल भी होता है, और तुम्हारा बोर्ड का पेपर में भी रेसिप्रोकल होगा। हाँ रेसिप्रोकल है तो देखो, रेसिप्रोकल का है तो देखो चेक करो, 1.6455, 1.6 को देखो, 4 में देखो, और 5 में देखो, 5 में मिला 21, तो 6494, और जो चौथा का डिफरेंस है वो सब्ट्रैक्ट करने का रहता है, तो उसको मुझे मिला 1.6 का 1.6 का 4 में 5 में, ओके, तो 6098.6098 और 18 का डिफरेंस, तो ये माइनस करने का है 0806, तो ये आएगा 0.6080 into 10⁻24, so that is equal to 6.08 into 10⁻23। आंसर क्या दिया है? आंसर मैच नहीं हो रहा है, आंसर मैच नहीं हो रहा है। गलत होगा सर क्या? आंसर। हाँ नहीं, आंसर मैच नहीं हो रहा है ना मेरा। सर टेक्स्ट बुक का गलत होगा। नहीं नहीं, हो सकता है मेरा भी गलत हो सकता है ना। कि देखो, ये मैंने जो फॉर्मूला लिया टेक्स्ट बुक में, देखो पेज नंबर 14 पे, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन अ वॉल्यूम V इज इक्वल टू V अपॉन ए क्यूब, वही फॉर्मूला मैंने लिया, V से CM क्यूब and V is CM cube and 353.6
Right, 24. Three point five 36, 3.536, 3.536, 44.211. 1 divided by 44.211. मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग है. My calculation is wrong. Calculation is wrong. कुछ तो मिस्टेक हो गया. हाँ भाई, मिस्टेक हुआ ना? हाँ सर. क्या मिस्टेक हुआ बोलो? सर आपने बोला ना मिस्टेक हुआ. मैं बताऊँ. इसका लॉग 3536 है. 3536 वो बराबर, मैं आर का ए का वैल्यू लिया 3536 बराबर है. 3536 का लॉग लिया 5485. 35 का 36 जरा लॉग दाखवा होगा. 3536 54 3536 7 and 15 तो 5485 बराबर है 0.5485 मल्टीप्लाई बाय 3 वो भी बराबर है. अब रेसिप्रोकल में गलती आया तो देखो. सर वो बराबर है रेसिप्रोकल आपका. 1.164556077 बराबर राइट है मेरा रेसिप्रोकल. फिर इसमें किया तो रॉन्ग आ रहा है. कैलकुलेटर से किया आंसर राइट आ रहा है. कहाँ हाँ मिस्टेक सर किया? वही आया. हाँ, कैलकुलेटर से भी वही आ रहा है. वही आ रहा है. हाँ, नहीं हाँ नहीं. सर आपने वो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया वो तो नहीं गलत हुआ है. नहीं नहीं, सेंटीमीटर में बराबर है 3536 1 divided by 3.536 3.536 2828 बराबर. कैलकुलेटर से मैंने कहाँ मिस्टेक, मेरा समझ में नहीं आ रहा है मेरे. एंड इसका आंसर कितना होना मांगता है? इसका क्यूब लेंगे तो. अरे हाँ, समझ में आया मिस्टेक किधर है. मैंने एंटी लॉग ही नहीं लिया, मैं लॉग से ही करते जा रहा हूँ. आई हैव नॉट टेकन एंटी लॉग. पागल जैसा घूमते रहा हूँ, याद भी नहीं आया सर आपको बता देता वरना. है ना. लॉग एंटी लॉग ऑफ 3 times log of 3.536
536 यस। हाँ, इसका एंटी लॉग लेना है मुझे। बोलो एंटी लॉग क्या आएगा? एंटी लॉग क्या आएगा इसका? 64 का 5 पे 55। अरे जरा जल्दी करो ना बच्चे लोग। मैं लॉग देखो, मैं एंटी लॉग देखो। 6455 4416 4421 4421। ओके 4421, तो ये ऐसा आएगा। दिस इज नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो इसको मैं लिखता हूं 10⁻24 upon 4.421 into 10⁻10, that is equal to 10⁻23 upon 4.421। रेसिप्रोकल के लिए 1 नंबर का बाद डिजिट चाहिए, तो रेसिप्रोकल डायरेक्टली ले सकते। 44.21 को 4.21 में कन्वर्ट किया, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10 किया। अभी अब रेसिप्रोकल ले सकता हूं मैं। रेसिप्रोकल 4421 4421 4421 2261 2261। अभी बराबर है सारा आंसर। हाँ बराबर है। नंबर ऑफ यूनिट सेल is equal to 2261 into 10⁻23. So that is equal to 2.261 into 10⁻22। I have not done the anti-log, इसलिए हम आंसर रॉन्ग आ रहा था, और कुछ नहीं। चलो ये हो गया। अभी दूसरा एक टाइप का सम करते हैं। Question number 6. In an question number 6. In an ionic crystal, question number 3. In an ionic crystalline solid, atoms of element Y form HCP, that means hexagonal close pack lattice. Hexagonal close pack lattice. The atoms of element X occupy 1/3 1/3 बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, फर्स्ट टर्म में मिला मुझे। 1/3 of tetrahedral words. What is the formula of the compound? What is the formula of the compound?
एससीपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिस इज एससीपी. डिजिटल बोर्ड पे इन्हें सीधा लिखा नहीं जाता. आई हैव गॉट डिजिटल ब्लैक बोर्ड. ये एससीपी है. सर वैसा लिख के सिखाने का ना व्हाइट बोर्ड पे. हाँ, व्हाइट बोर्ड पे लिख के व्हाइट सिखाने बोर्ड पे कैसा लिखा हूं मैं? वो मुझे नहीं जमता है. y फॉर्म एससीपी यानी इधर y है, ये 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 y है. एंड ये भी y है, 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 ये भी y है. और x किधर है? खड्डे में. कौन से खड्डे में? टेट्राहेड्रल वॉइड्स. टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ये x है और ये x है, ये x है. और ये x है. ये एससीपी था. ये 3 7 3 7 3. तो एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स है? एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स? ये जो y वाले कितने यूनिट सेल के साथ है, कितने यूनिट सेल के साथ शेयर किया हुआ है? 1y is shared by how many unit cell? Can you imagine? द कॉर्नर वाला जो y है वो कितने यूनिट सेल के साथ शेयर किया? कैन यू टेल मी? एक y जो कॉर्नर का है वो कितने यूनिट सेल के साथ है? एक यूनिट सेल इधर है, एक यूनिट सेल इधर है, एक इधर है, एक इधर है. 3 अपनी लेयर में थे. सो नंबर ऑफ वाइज इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू 1/6 प्लस ये जो y है 2 यूनिट सेल के साथ शेयर है, ये वाला और ये वाला. तो 2 इंटू 1/2. तो ये कितने हो गए? 2 + 2 प्लस 3 अंदर है. So that comes to 7 particles of y. 7 particles of y. 7 particles of y. Okay. So there are 7 particles. Therefore, number of tetrahedral voids. Number of tetrahedral voids will be 14. Number of tetrahedral voids are double the number of particles. X are in 1/3 of 14. That is 1 of 14. So number of X are this. Number of Y's are 7 and number of X are 14/3. Multiply by 3.
So this will be 21 and this is 14 divided by 2, 3, 2. So it will be x2 y3. x2 y3 ये इसका फॉर्मूला। ये आज के दिन के कहूँ ये सम वापस करूंगा नेक्स्ट टाइम एंड आई विल कंप्लीट द चैप्टर नेक्स्ट टाइम। ये चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा। ओके बाय। ओके सर। Okay, sir. सर